Up to yesterday, we have finished chapter 4, OV number 134. We'll start with the 135 now. असो बाबांच्या आज्ञेवरून पूर्वी प्रमाणे विटा लावून भुयार टाकिले बंद करून निज गुरुस्थान म्हणून ते. So in previous session, Baba has requested all these residents of Shirdi upon the direction or order from Khandoba that whatever the spiritual power entered into that person's body, and he ordered that to dig, and they got an amazing thing there. 4 lamps were actually burning there, and as if fresh things, some good fragrance and etc. And people were actually somebody. It was a assumption that it was look like somebody just freshly doing some meditation there. The Gomukhi, that part, this and that. So yesterday some question was there. Nana Chopdar's mother mentioned that she was about that Baba's age was about 16 years, and in that particular spiritual power, they said this boy has done the meditation at this place for 12 years. Now the thing is, it means Baba had appeared there uh, at the age of 4. I'll do one thing, and let us clear one thing. See this Sai Satcharit in angle of spirituality. Don't consider this as a historical document. I have been reading in Sansthan also and outside people also. Unfortunately, this particular holy book is considered as an authentic document for historical purpose, and it is referred to. And sometimes it has got lot of confusing evidences. Now, one particular evidence, if I tell you, now let us say 16 years. After that, Baba was there for 4 years. That Lendi bag, etc., everything he has flourished and watered, and he disappeared from there. After 4 years, again he came back. That is what Sai Satcharit says. Now Ramgir Bua, you know that Jamner episode of with Chandorkar, that same Ramgir Baba Gosavi. He had met Chand Patel, and they were having discussion, and he has mentioned it that when he saw Baba, Chand Patel saw Baba in Shindon Bindon jungle, he was about 25 to 30 years. He was having mushek, long, this one, beard or etc. everything. He was about 30 years. That is what Chandpai mentioned. Chand Patel, sir. Now, this 10 years difference, definitely Baba did not came at the age of 20 back. So he came at the age of 30. So please don't go into this kind of things. When you read Sai Satcharit, read it in a plain emotions with meditations and with Bhava Purna, with Bhakti Bhav. Now, regarding, there was one question, who that lighting of 4 lamps, Samayi, normally you find it in any mandir, in Hindu temples, especially in South, there are very big lamps are there. What is the significance of it? Now, when you do the meditation, if you are at 4 places, even Baba used to sleep on the plank, he used to put 4, what you call, earthen lamp on 4 sides of it.
That is the sign of spiritual light, a aura. From all the four directions you put it, from everywhere, you get one power circle, complete power circle. And there is no any single gap of entering tamogun, tamas, or agyan, no knowledge stage. That is why in meditations, what you do is you don't allow any darkness of gyan, darkness of thought, darkness of negativity, everything it gets vanished. That is why when you go to mandir, you will find everywhere lights on all these things, and you get pleasant happiness atmosphere around you. That is the thing, nothing else. Now, Baba requested all the residents of these people, Shirdi, that please preserve it as it is. This is the sthan of my guru. There is a contradiction. That spiritual power appeared in that body of that particular person, said, this boy has meditated there for 12 years. But Baba very cleverly, jokingly avoided this, whether he did it or somebody did it. So from this incident, you can conclude, that you cannot imagine the age of Baba. You cannot calculate the age of Baba. There are several other stories around this. If at the age of 4, Baba was meditating here, what was he doing in Patri and Setu and all this Aurangabad and all the side? Let us not go into details, we'll go into further. असो बाबांच्या आज्ञेवरून पूर्वीप्रमाणे विटा लावून भुयार टाकिले बंद करून निज गुरुस्थान म्हणून ते. So people, residents, they accepted the order, rather later on it order, now it is request of that boy. बाबा ने उनको बोला कि ये ऐसा क्या ऐसा बंद कर दो. So as it is, they restored that again, closed it on request from Baba, as it was closed before, and they, from that onwards, as Baba's order, it was never digged and it was never opened again. Because Baba told it is Guru Sthan. And a lot of senior people like Mahasapati and all these people, they were worshipping this particular thing as a Guru Sthan. Till today, it is preserved, it is secured as Guru Sthan, Baba ke Guru ka Sthan. Now there is one particular thing, just for the sake of knowledge. What Baba says? जो गुरुवार शुक्रवार, जो गुरुवार थर्सडे और फ्राइडे को वहां जाएगा और मेरे गुरु के स्थान पर पहले माथा टेकेगा. What we do now, आते ही लाइन को लग जाते हैं बाबा के समाधि के ऊपर. What should be the order of taking darshan? First Guru स्थान. मेरे गुरु की पहले, बाबा ने क्या कहा है, मेरे गुरु का पहले नमस्कार करो, उसके बाद मुझे नमस्कार करो. सो रियली बाबा को प्लीज करना है तो पहले आप जाने के बाद पहले गुरु स्थान में अपना दर्शन ले लीजिए, वहां परिक्रमा कीजिए और उसके बाद बाबा के पास आइए. बाबा विल बी मोर प्लीज्ड. सो प्लीज डू इट. मैं पहले हमेशा गुरु स्थान में पहले जाता हूं, देन बाबा के समाधि के नंबर लाइन को लगता हो, या वॉट एवर द वे दैट पास और समथिंग. ओके. जय. Notwithstanding anything, ultimately, on Baba's request, that tunnel was restored to its earlier closed position and was preserved at
his guru's abode. जैसा अश्वत्थ व औदुंबर तैसाची बाबा सतो निंबतरुवर प्रीती फार त्या निंबावर अति आदर तयांचा. अश्वत्थ, पिंपल, पिंपल वृक्ष, वो जो लेंडी बाग ने बाबा ने लगाया ना, उसको जो 9 रूट्स है, it's called a banyan tree, I believe. No, banyan is something word. This one is it is called ashwatth people बोलते हैं उसको. वो जो लेंडी बाग में बाबा ने एक ड्राई स्टिक लगाई थी, उसका जो बहुत बड़ा महाकाय वृक्ष हो गया, दैट. जैसे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू और पुराणों में औदुंबर वृक्ष, औदुंबर यानी बनियान ट्री, और पीपल वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, मंगल माने जाते हैं, पावन माने जाते हैं. वैसा ही ये नीम वृक्ष है. नीम ये विष्णु का स्वरूप माना गया है. हमारे धर्मशास्त्रों में नीम का वृक्ष विष्णु का स्वरूप माना गया है. तो वैसे ही बाबा के लिए जैसा हमें औदुंबर वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, वैसा ये नीम वृक्ष भी उतना ही पवित्र और पावन है. ये नीम वृक्ष के बारे में बाबा को बहुत आदरयुक्त प्रेम था, रिस्पेक्ट था. बाबा बड़े लीन होते थे नीम वृक्ष के सामने. Just as we revered that tree of Audumbar or people, so also Baba was devoted to that neem tree. Baba had an adoring affection towards that tree. माळसापती आदी करून जुने शिर्डीचे ग्रामस्थ जन बाबांच्या गुरुचे हे समाधी स्थान म्हणून वंदन त्या करीती. माळसापती और शिरडी ग्राम के जो श्रेष्ठ भक्तगण थे, और भी बाहर के और उनके, और पुराने जो रेसिडेंट्स है शिरडी के, ये जो स्थान है बाबा के गुरु का स्थान है, यही मान्यता रखते थे, और उसी हिसाब से ही बाबा के गुरु के स्थान को चरण वंदन करते थे, और भाव भक्ति से वहां जाके पहले गुरु का स्थान, बाद में बाबा के पास. Baba's apostles, other senior disciples, and Shirdi's senior citizens treat this place as Baba's Guru's place of Samadhi and devotedly pray before it, including Malasapati. Taya Samadhi Sannidhani, near to that. द्वादश वर्षे मौन धरुणी तपश्चर्या केली बाबांनी प्रसिद्ध जनी ही वार्ता. अब बाबा ने तो उसको बोल्ड मेरे डिक्लेयर कर दे, मेरे गुरु का स्थान है, लेकिन वो समाधि स्थान के बाजू में सन्निधानी, उसके नजदीक समीप 12 वर्ष 12 इयर्स मौन धारण करके बाबा ने वहां तपश्चर्या की है, ऐसी मान्यता है वहां. और हम भी वो, क्योंकि वो सब सीक्वेंस है. अब उसको वो जो खंडोबा के जो स्पिरिचुअल पावर जो बॉडी में आई थी, उन्होंने बोला था यहाँ खोदो, निकल गया खंडर, वहां गुरुस्थान निकल गया. वो अंदर की पूरा जो नजारा है, आपने आपने अभी बयान करके देखा, वो जो हमने नैरेट किया वो आपने सुना, तो उसको झूठा कैसे बोल सकता है. और ये लड़का 12 साल यहाँ शायद ये किया है, मेडिटेशन किया है, तो that Baba definitely did near that samadhi. So it's Baba's Guru स्थान, बाबा के गुरु का स्थान है, और उसके बाजू में बाबा ने 12 साल समाधि की है. अब ये बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत सारे पूछते बाबा के गुरु का नाम क्या. बाबा कभी रोशन शाह मियां बोलते थे, या शाह बोलते थे, या वेंकू साहब बोलते थे, वंकू शाह बोलते थे. अब उसके बारे में बहुत सारे रिलेटिविटी और लगाए जा रहे हैं. मतलब सेलू के जो गोपाल महाराज है, उनका नाम भी वेंकू साहब बोलते थे, तो वो है, वो नजदीक थे. एक प्रेमा फेसी और सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस से खुलकता है. लेकिन आपको मजे की बात बताओ, वी कंसिडर सेलूज वेंकू साहब बाबा must be Baba's guru,
because he was also declared that सुहाग साय के दरगाह में as a रामानंद तीर्थ के रिइंकार्नेशन उनका फिर से पुनरावतार हुआ, ऐसी मान्यता है उधर। अब ये जो वेंकुसा बाबा है, ये जो गोपाल राव महाराज है, इनके सेलू के मंदिर में जाइए, वहां देखिए पूरा, देखिए वहां एक एविडेंस है, वहां एक शिलालेख लिखा हुआ है, ताम्रपट है, उसमें उन्होंने जो देह छोड़ा है वो शके 1723 यानी ईस्वी सन में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर इट इज 1801। अब एनाटॉमी के हिसाब से, अगर शरीर शास्त्र के हिसाब से आप बात करें तो बाबा का जन्म हो गया होगा, तो मैं तो नहीं मानता हो गया, लेकिन हो गया होगा तो वो 1835 1838 के नजदीक ही हुआ है। अब बाबा का जन्म अगर 1838 में हुआ है या शरीर शास्त्र के हिसाब से वो 1838 में प्रकट हुए हैं, तो 1801 में जो परलोक सिधारे हैं, उन्होंने अपना देह त्याग किया है, वो वेंकुसा बाबा बाबा के गुरु कैसे हो सकते हैं? सो डेफिनेटली ये वेंकुसा बाबा नहीं है। मेरा रिसर्च इसके ऊपर चालू है, इसके बारे में मेरी बीबी खेर और 2-3 लोग उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन वगैरह सब हुआ है। सो बहुत नजदीक पहुंचे हैं, आपके हाथ में 2-3 साल में जरूर कुछ ना कुछ आ जाएगा। वेंकुसा बाबा बाबा के गुरु नहीं हो सकते। अब वहां पूरी मान्यता ऐसे कि बाबा ने वहां भी 12 साल वहां वास्तविक किया है, सिलू में, वो गढ़ी में। वहां भी डिफरेंट एक स्टोरी जो दासगुनु जी ने अपने लिटरेचर में लिखी है। फिर वो और इसका कोरिलेवेंस कैसा बैठेगा? नहीं बैठता है। The fact that Baba has mutely meditated at this place near the Samadhi for as many as 12 years is universally known. Everyone is aware of it. समाधी आणि निंब समेत चौफेर जागा घेऊन विकत साठे साहेब बाबांचे भक्त चौसोबी इमारत उठविती. Now what happened is, ए आद्य भक्त मैंने बहुत सीनियर मोस्ट हरि विनायक साठे, you will find lot of his references everywhere of this family and Kelkar family, because he happened to be the father-in-law of Hari Vinayak Sathe, Dada. So what Hari Vinayak Sathe did is समाधि, वो जो समाधि की जगह और नीम, उसके साथ उसके आजू बाजू की जो जगह है, वो जगह साठे साहब ने खरीद ली। वो बहुत श्रेष्ठ भक्त, डेप्यूटी कलेक्टर थे खेड़ा जिला के, और वहां से उन्होंने एक साठे बाड़ा का निर्माण किया। मैं एक 7-8 रूम थी, 5-6 रूम वहां, बिल्कुल वो गुरुस्थान और मंदिर के बीच में थे। पुराने अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको मिल जाए, पता चलेगा। वो समाधि और नीम के साथ उन्होंने वो जगह खरीद ली और वहां एक इमारत का निर्माण किया। एक्चुअली आज के जमाने में वो चाल जैसा ही दिखता था, वो कौलारू था, हम गए हैं वहां, हमने देखा है। वहां एक इमारत का निर्माण किया और इसको कहा गया साठेवाड़ा। ये गुरुस्थान, और इसमें वो जो साठेवाड़ा है, ये किन्होंने बांधा? हरि विनायक साठे। One of Baba's disciples, Sri Hari Vinayak Sathe, purchased the place of Guru Sthan, Guru's abode, and the surrounding area, including the neem tree, and constructed a 4 square dimension bada, or you can say constructed a structure there. हीच इमारत, हाच वाडा, यात्रेकरूंचा मूळ अखाडा, आलिया गेलियांचा राडा, एकची गाडा ते स्थानी. यही साठेवाड़ा शुरू में बहुत दिन तक, जब तक ये दीक्षित वाड़े का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक
यहाँ ये जो बाहर से जो लोग आते थे, पिलग्रिम्स जो आते थे, उनको रहने के लिए ये सुविधा साठे साहब ने करके रखी। बहुत सारे लोग आते थे, हर एक रूम में 2-2 3-3 4-4 फैमिली रहती थी, वहां रहते थे, बाबा के पास जाते थे। तो दिस वन वाज वन ऑफ द lodging and boarding that time Sathe Sahab has provided for the pilgrims. ये पुराने जमाने में एकमात्र था, ये एकमात्र था ये साठेवाड़ा। और अपना ये जो शिरडी का जो बाड़ा है, साठे साहब जब वहां से निकल गए तो उन्होंने ये नवलकर साहब को बेच दिया। सुंदर राव नवलकर एंड ऑल दो 3 ब्रदर थे, उनको दे दिया। राव बहादुर नवलकर, वो नवलकर साहब ने ये बाड़ा देन संस्थान को प्रेजेंट दे दिया, दान कर दिया, अर्पण कर दिया। वही ये स्ट्रक्चर था। बांधिला साठ्यानी निंबास पार, माझ्या माड्या काढिला दक्षिणोत्तर, उत्तरेचा जिना तयार करिता हे भुयार दाखविले। सो साठे साहब ने क्या किया, ये बाड़ा का जो ऐसा स्क्वायर था पूरा कंप्लीट, ऐसा मैं चारों तरफ से ऐसा था, इधर 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 ऐसा था, उसको जो बीच में जो एक बाजू के एक दीवार के बाजू में वो जो नीम का ये था, उसको अच्छा तरह से एक चौथरा एक डेस एक डायस टाइप स्टेज बांधा उन्होंने, पार बोलते हैं उसको। और दक्षिण उत्तर दिशा को उसके द्वार थे, ये वाड़े के गैलरी थी और बहुत सारे रूम्स थे। इन फर्स्ट फ्लोर भी थे, ऊपर भी थे फर्स्ट फ्लोर पे। मैं वहां रह चुका हूं। हाँ, बच्चा था मैं, 10th स्टैंडर्ड में जब था वो, जब मैं गया है ना, एक दिन बहुत रात हो गई और मुझे वो स्टेशन में स्टैंड में सोने नहीं दिया, तो मैं वहां गया और उधर वो मुझे वहां कौन मिले पता है, नाना साहब रास में। उन्होंने वो जो थैला जो होता है, वो थैला बोला बेटा इधर सो जा, और मैं वहां सोया हूँ ये साठेवाड़ा में। वो उत्तर जो नॉर्थ साइड है ना, वो नॉर्थ साइड में पहले माले पे जाने के लिए एक जो स्टेयरकेस बनाया था, वो स्टेयरकेस के नीचे वहां एक ऐसा एरो लगाया हुआ था, यहाँ भुयार है करके। वो अभी स्ट्रक्चर डिमोलिश हो गया, उसकी जगह अभी नया रिनोवेशन हो गया। This is the same Sathewada. This building later on was utilized as the only hostel for the pilgrims to take shelter. This becomes the place for the gathering of followers and disciples coming to avail the Baba's darshan, and used to be fully occupied. And that structure was very useful at that days, in those days. Earlier, this mansion was used by pilgrims as the only resting place. Later on, when R.B. Sathe shifted his residence from Shirdi to Pune, he sold it to Navalkar, and the mansion come to be known as Navalkar's Wada. Eventually, Navalkar donated this mansion to Shirdi Sansthan. At the time of construction of the Wada, Sri Sathe built the residential hostel premises. It had many halls and rooms with north-south entrance, including a gallery on the first floor. While constructing the staircase to go to the upstairs on first floor, on the north side, a special sign denoting the existence of this tunnel under it. एक्चुअली वो जीना ऐसा था, लकड़ी का जीना था, उसके नीचे ही वो एरो लगाया हुआ था। अभी भी अगर पुराने कोई फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो वो एरो दिखेगा आपको। Existence of tunnel under it was mentioned, showing the direction towards it. जिन्या खाली दक्षिणाभिमुख 142 कोणाडा एक आहे सुरेख, तेथेची पारावर तया सन्मुख भक्त उदन्मुख बैसती। ये जो स्टेयरकेस थी, वो स्टेयरकेस के दक्षिण द्वार, उसको दक्षिण साउथ फेस एंट्रेंस था, उसमें सुंदर सा एक ऐसा कॉर्नर
बना हुआ था, और वो कोनाडे के सामने, वो जो कॉर्नर, ये नहीं कोनाडा बोलते, कॉर्नर के सामने नॉर्थ साइड को फेस करके भक्तगण वहां बैठते थे, वो पार के ऊपर, वो जो बांधा बांधा था ना, सर्कुलर स्टेज covering the neem tree. It was sitting place that time. There are nice canopy under this staircase having an entrance from the south. Disciples assembles on the dais opposite this canopy and facing toward the north. गुरुवार आणि शुक्रवारी सूर्यास्ती सार्वणीयावरी, सूर्यास्ती सार्वणीवरी यानी व्हाट यू कॉल, उसको कातर वेळ बोलते हैं, सायं टाइम, एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट टाइम। बाबा ने कहा है जो लोग गुरुवार को और शुक्रवार को एट द टाइम ऑफ सनसेट जो यहां ऊद जलाएगा, जो उसको श्री हरि बहुत सुख प्रदान करेगा, श्री हरि भगवान प्रभु उसको बहुत सुख शांति बख्श देगा और प्रदान करेगा। In this sacred Guru's place on Thursday and Friday, whoever burns fragrant cubes, udi, udi holy ash, जो होते हैं ना स्टिक, और इवन पुराने जमाने में वो पाउडर भी आती थी, उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रहते थे। At sunset in the evening, when it is dusk, will receive permanent happiness from the Almighty. This is assurance of Baba. So whenever you go and if you have got a night stay there, in the sunset time, go to the Guru Sthan, जो ऊदी का जो फ्रेग्रेंस स्टिक है, इसे स्टिक है, वो स्टिक डाल दीजिए उसमें और नमस्कार कर दीजिए। ही अतिशयोक्ती किंवा खरे साशंक होतील श्रोत्यांची अंतरे, परी ही साई मुखीची अक्षरे श्रवणद्वारे पसरली। नाउ हियर Hemad Pantaji giving one strong authentic evidence that आपने वो जो अभी 143 स्टैंजा में जो मैंने नरेट किया है, ये आपको शायद थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला है ना, ज्यादा ही कुछ बोला है, ऐसा लगेगा और आपके मन में आशंका आ जाएगी, आप संशय भाव से देखोगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अपने काम
people who are doubting on this, I am assuring you, that is what Hemadpant is telling. ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है बाबा ने कहते हुए। ऊपर की जो ये जो ओवी है, ओवी में कहा है आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति लगा, अति ज्यादा लगा होगा, ऐसी आपको आशंका आना साहजिक है, स्वाभाविक है, मनुष्य धर्म है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ये मेरे बोल नहीं है, ये साईं बाबा के बोल है और मैंने अपने कानों से सुने हुए हैं। It's quite probable that the readers may suspect the veracity of this above pronouncement and may feel that it may be an exaggeration. Exaggeration, that word I was not getting. But these are not my views, but the dictum of Baba himself. I have myself witnessed this personally. नाही माझिया पदरचे विधान, शंका न धरा अनुप्रमाण, प्रत्यक्ष जाननी केले हे श्रवण, ते आज विद्यमान असते। ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने नहीं कि बोला है, इसमें मेरे मन का मैंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, एडिशन कुछ भी नहीं किया है। इसमें कोई शंका कुशंका अपने मन में मत लाइएगा। और बाबा के ये शब्द जिन्होंने सुने हैं, आज भी वो लोग हयात है, जीवित है। उस वक्त हेमाडपंत ने कहा है, दिस मस्ट बी समवेयर 1924-25. Okay, so this is not my own statement fabricated by me. It is not my surmise. Don't nurse the slightest doubt. Don't be inclined to disbelieve. There are people even to these days who have listened these words from Baba along with me. 146. पुढे झाला दीक्षितांचा वाडा, सोय झाली प्रशस्त बिराडा, अल्पकालीन तेथेचे पुढा, दगडी वाडा ही उठला. After some years, there was construction of Dikshit Wada took place. एक्चुअली इसका जो उद्घाटन हुआ है 1911 के रामनवमी को हुआ है। उसका गृह प्रवेश का समारंभ 1911 को, 1910 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तब 10th दिसंबर 1911 आई बिलीव, आगे चल के हम देखेंगे। ये इमारत को दीक्षित वाड़ा बोलते। दिस वाज अपोजिट ऑफ साठेवाड़ा, वेयर नाउ द म्यूजियम। नीचे वो हम वहां खाना खाए हैं, 50-60 लोग बैठते थे वो नीचे, वो दीक्षित वाड़ा में। इधर से 25-30 का, इधर 25 था, दो लाइनें बैठती थी। आज 40-50 हजार लोग एक साथ बैठते हैं, 5,000-6,000 बैठते हैं एक साथ में, वहां बैठते थे। और ऊपर दीक्षित काका रहते थे। और आज वो कन्वर्ट हो गया है पूरा दीक्षित वाड़ा इनटू ए म्यूजियम। पुढे झाला दीक्षितांचा वाडा, सोय झाली प्रशस्त बिराडा, अल्पकालात तेथेची पुढा, दगडी वाडा ही उठला. After some elapse of some time, in 1911 स्पेसिफिकली दीक्षित वाड़ा का निर्माण हुआ। बहुत बड़ी जगह हो गई यात्रिकों के रहने के लिए। और उसके बाद कुछ साल बाद वहां बुट्टीवाड़ा भी खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट फॉर as a hostel for pilgrims or etc. This was a personal property of Lord Sai. बुट्टीवाड़ा बुट्टी साहब का भी नहीं कह सकते, लॉर्ड साई। Thereupon, after a lapse of time, Sri Hari Sitaram Dikshit also constructed a big villa. It was sanctimoniously inaugurated on Ram Navami Day in the year 1911. This building came to be known as Dikshit Wada. The spacious premises of this house provided a good shelter for the pilgrims. Within a short time, this got converted into a seasoned stone building. दीक्षित आधीच पुण्यकीर्ती, भावार्थाची होती व मूर्ती. क्या बात है. आंग्ल भूमीचे यात्रेस जाती, तेथेच रोविती निज बीज. सो हाउ दीक्षित साहब, दीक्षित क्या कहने, दीक्षित मतलब
अनकंपेरेबल डिवोटी बाबा के, पुण्य कीर्ति, कीर्तिमंत, बहुत बड़े लोग, स्टेट असेंबली के लेजिस्लेटिव काउंसिल को खड़े हो गए थे। He was a big person that time. ओती व मूर्ति, इधर एक लिखा है ओती व मूर्ति, यानी जो मेल्ट करते हैं ना किसी भी धातु को, मेल्ट करके वो साँचे में डालते हैं और उसका कास्टिंग करते हैं, और जैसे आइडल भी बनाते हैं अगर किसी धातु का, तो कैसे बनाते हैं, साँचे में डाल के उसको पिघला के उसके अंदर डाल देते हैं। तो दीक्षित काका तो भक्ति भाव की जैसे टकाटक भरी हुई, फुल भरी हुई मूर्ति, एक बार कास्टिंग होने के बाद उसका शेप चेंज करते क्या? नहीं होता, होता क्या नहीं, उसको फिर से पिघलना पड़ेगा। वैसे हार्ड कोर साई डिवोटी दीक्षित काका यानी, वो एक बार इंग्लैंड गए हुए थे, आंग्ल भूमीचे यात्रेचे जाती, यानी वो आंग्ल भूमि ने इंग्लैंड में गए थे, और उधर ही क्या हुआ था, ये भक्ति का जो बीज है उनके दिमाग में, वही इंग्लैंड में बोया गया है। कैसे? वो तो बहुत सात्विक वृत्ति के थे, वो इंग्लैंड में गए और उनका क्या हुआ वो अभी अपन आगे देखते हैं। Sri Dikshit was basically a pious individual, blessed and prestigious individual. His devotional feelings were so profuse and strong that he could be taken to a devotion personified. Dikshit Kaka embedded this spirit of religious fervor and loyalty while he was on his tour of England. येथे 148 येथे श्रोते घेतील शंका, सोडोनी मथुरा काशी द्वारका, धर्म बाह्यजी आंग्ल भूमिका परमार्थदायका, कैसी बयान। नाउ पीपल विल टेक डाउट, लोगों को शंका आ जाएगी, यहाँ आपने भारतवर्ष में काशी, मथुरा, द्वारका ऐसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, और जिसका अंश मात्र भी अपने धर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं, ऐसी वो आंग्ल भूमि इंग्लैंड, वहां प्रवास उन्होंने किया, वहां की यात्रा की, तो वो परमार्थदाय कैसे हो सकता है? सही है शंका, है ना? Incidentally, the readers will start surmising as to how the travel in an aligned land of English people, where not an iota of our religion exists, wise ways, the Indian sacred tourist places like Kashi, Mathura and Dwarka could be instrumental to bestow divine blessings. ये डाउट आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका इसकी वजह हो गई थी, उसका कारण है क्या है? श्रोत्यांशी शंका ही साहजिक, निरसिता ती वाटेल कौतुक, विषयांतर घडेल अल्पक, क्षमा सकलिक करतील। अभी श्रोताओं के दिमाग में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, लेकिन जब उनका शंका का समाधान हो जाएगा तो उनको आश्चर्य लगेगा, उनको सही में दे विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वो ये जो कथानक अभी चालू है उसको थोड़ा विषांतर हो रहा है, वही बोल रहे हैं, ये कथा विषांतर घड़ेल कल्प का थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगा, लेकिन श्रोताओं की शंका दूर करने के लिए मुझे ये बताना जरूरी है, ऐसे हेमाडपंत जी इस स्टैंजा में कहते हैं, और ऊपर से प्रेमल श्रोते मुझे इसके लिए, ये विषयांतर के लिए, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्षमा कीजिए, ऐसा भी कहते हैं। It is but natural for readers to ponder thereon, but readers will be amused if once their doubts are cleared. It may require a little interruption here, but for the sake of clarification of doubt, my dear audience will excuse me for this distraction. Kashi, Prayag, Badri, Kedar, stanza 150. काशी, प्रयाग, बद्री, केदार, मथुरा, वृंदावन, द्वारकापुर इत्यादि यात्रा पुण्य निकर बद्री पूर्वी तयांचे। काका साहब दीक्षित ने ये सब तीर्थधाम पहले ही कर चुके हैं।
काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, ये इत्यादि जो पवित्र स्थान जो है उसकी ये पवित्र स्थान ये जो है, काका कैन यू प्लीज, देयर इज वन एट द एंड ऑफ आई विल जस्ट एक्सप्लेन। दीक्षित काका ने ये पहले ही ये इनकी सब तीर्थ यात्राएं उनकी हो चुकी है, उन्हें तो पुण्य मिलना है उनके पहले ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, वो उनके पल्लू में आ गया है पहले ही। The Dikshit had already undertaken this visit or yatra tour here before the pilgrimage to the sacred places of Kashi, Prayag, Badrinath, Kedarnath, Mathura, Vrindavan, Dwarka, etc. The Almighty has already rewarded him thereon with his divine blessings. शिवाय वडिलांची पुण्याई, धन्य भाग्याची अपूर्वाई, सर्व पूर्व अर्जिताची भरपाई झाले साई दर्शन। और इसके ऊपर देखो, यानी सोने पे सुहागा देखो, कौन सा पूर्व अर्जित है, यानी प्रीवियस लाइफ में या प्रीवियस बर्थ में उन्होंने जो भी कुछ पुण्य फल संचय किया है, जो स्व कष्ट से अर्जित किया, स्व अर्जित है वो, यानी खुद उन्होंने कमाया हुआ है। क्या पुण्य फल, पुण्य कमाना पड़ता है, ऐसा ही नहीं आता है। सहज भाव से आपके हाथ से अगर कुछ अच्छा काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन यू गॉट टू डू दिस डिलिबरेट एक्ट। पुण्य ये कमाने की चीज है, अर्थ कमाते हो ना, तो पुण्य भी कमाने की चीज है। ये स्व कोश से उन्होंने जो पूर्वार्जित जो पुण्य संचय किया था, उसका अम्यूजमेंट देखो भाई, उसका क्या करते थे वो क्या नवलाई है उसकी, क्या करते थे। क्या आश्चर्य की बात है कि इस जन्म में उनको साईं बाबा के दर्शन हुए। द रिजल्ट ऑफ इट, ऑल दिस पुण्य संचय उनके पास था, ये हुआ। भाग्य जब तक के भाग्यों का उदय नहीं होता है, तब तक आपको साईं के दर्शन नहीं होते हैं। यही यहां कहते हैं, आपको कुछ जो भी पुण्य फल, पुण्य का साठा अपने पास है, इसीलिए आपको ये मिल रहा है। और उसी का रिजल्ट ये है कि दीक्षित काका को बाबा के दर्शन हुए हैं, है ना। His ancestral benevolence, Kaka Sahib's rise the development in spiritual line, Kaka Sahib's fund of beneficence from previous life and its reward cumulatively resulted in his good fortune to obtain the Sai Darshan. मैंने बहुत सारे लोग देखे भाई, शिरडी जाकर भी दर्शन नहीं ले पाए। हाँ, देखा हूं मैंने, जो शिरडी को बाबा बुलाते हैं वही वहां जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण है। कभी आपको लगता है कि मैं बस तैयारी करता हूं, आज जाऊंगा, सालों साल नहीं जा सकते, और कभी दिमाग में नहीं रहता है, 2 घंटे के बाद निकल जाते हैं। क्यों? ये बाबा ऑर्डर रहती है, आपका कुछ नहीं रहता है उसमें। या दर्शना आदि कारण प्राक्तनींचे पांगुळपण आंग्ल भूमीत असता जाण पाये निसरून जई आले। ये दर्शन, बाबा का जो दर्शन हुआ, उसकी वजह क्या थी? ये जो शंका समाधान अभी आपका हो रहा है वो ये है कि ये भक्ति का बीज जो आंग्ल भूमि में, इंग्लैंड में उनके मन में बोया गया, उसका कारण ये था कि वहां उनके नसीब के भोग के वजह से उनको एक पैर को चोट आई पग को, और वो हमेशा के लिए परमानेंटली ऐसे लगड़ते हुए चलने लगे, लंगड़ेपन आ गया उनको, लंगड़ा हो गया वो। यही उनका जो लंगड़ापन उनको आया, एक पैर की जो हाइट है थोड़ी कम हो गई, यही साई समर्थ के दर्शन की।
कैसे? Although this lameness was apparently an ominous calamity, yet its outcome was a Guru Pushamrut like coincidence. As it consequence, a remote possibility of association with Sai finally materialized. ये सही सच है. दिसाया दसरी दरी दसला हा कुयोग तरी परिपाके गुरु पुष्य योग तेने फळला सदुद्योग अलभ्य संयोग साईंचा. ये गुरु पुष्य योग क्या होता है? गुरु पुष्यामृत योग जो बोलते हैं, गुरु पुष्य योग लिखा है इधर ओवी में, लेकिन सही बोले तो गुरु पुष्यामृत योग है. यानी गुरु ग्रह और पुष्प नक्षत्र जब एक एक साथ आते हैं, मतलब वो उनका जो परिक्रमा परिभ्रमण में ये जब इकट्ठा आते हैं, वो जो योग होता है, दैट योग इज शुभ योग माना गया है. और इसलिए गुरु पुष्यामृत योग यानी सोने पे सुहागा होता है. स्पेशल स्पिरिचुअल चीजें अपने को उसमें मिलती है, स्पिरिचुअल प्राप्ति हमें उसमें होती है. सत उद्योग यानी अच्छे कर्म. अलभ्य यानी जो प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन है. अलभ्य तकलीफ वाला. ये ऊपर ऊपर देखा जाए तो ये जो लंगड़ापन आया था दीक्षित काका को, ये कुयोग है, ये बुरा योग है. एक्चुअली किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन काका के लिए यही घटना, यही जो पैर का जो व्यंग उनको आया था, वो गुरु पुष्यामृत योग के जैसा फलित हुआ. और उसी की वजह से काका साहब के हाथ से ये जो बहुत ही कठिन अप्राप्य ऐसा जो साई सहवास है, वो मिलने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ. और यही उनका सत्कर्म है. अब वो किनको मिले? वो मिले नाना साहेब चांदोरकर को. चांदोरकरांची गाठ पडली, साईंची कीर्ती करणी आली. चांदोरकरांची गाठ पडली, साईंची कीर्ती करणी आली. म्हणती पहा दर्शन नवाली, जाईल पांगुळिक तत्काळ. अब उनका चांदोरकर जी, नाना साहब चांदोरकर, अर्डेंट डिवोटी, हाई स्केल डिवोटी, उच्च कोटि के जो बाबा के भक्त थे, उनकी और उनकी मुलाकात हुई. और नाना साहब ने साई का महिमा, साई लॉर्ड साई का महिमा, उनकी महती उनको बताई, नैरेट किए. और नाना साहब बोले, आप एक बार शिरडी जाके साई बाबा के दर्शन ले लो और उसकी फल प्राप्ति देख लो, आपका ये जो लंगड़ापन है ना, ये निकल जाएगा. आप फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे. He came into contact with Nana Sahib Chandorkar and he gathered the information about the greatness of Saint Sai from Nana Sahib Chandorkar. And Nana Sahib told him, you go once to go and enjoy the darshan of Sai Baba and experience the result thereof. Your lameness will immediately vanish. Lameness will be immediately vanish. They can see the greatness of Sai Dikshit Kaka. क्या बोले? 155. परिहा पायांचा लंगडेपणा, दीक्षित न मानित उनेपणा, खरा लंगडेपणा जो मना घालवा म्हणाले साईस. ये है भक्ति की कसौटी. हाँ, क्या बोले काका? काका साहब बोले, मेरे ये देह का जो ये व्यंग आया है, मैं अपंगत्व जो आया है, उसे मैं माने नहीं रखता. मेरे लिए वो दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता. वो उससे मुझे कुछ भी न्यून भावना नहीं लगती है. मुझे उसका कुछ भी कमी पर नहीं लगता है. मुझे क्या चाहिए? मेरे मन को जो व्यंग आया है ना, ये श्रिंक हुआ है, थोड़ा सा सिकुड़ गया है. किसके? विचारों के.
हिसाब से जो सिकुड़ गया है, वो देह के लंगड़ेपन से मेरा मन का लंगड़ापन निकाल दो। देह का जो व्यंग है वो रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मन का व्यंग निकाल दो पहले, वो लंगड़ेपन निकालो। मैं यही प्रार्थना, और उन्होंने पहले आई तो बाबा को की है कि बाबा मेरे मन का लंगड़ापन जो है, मन का जो व्यंगत्व है, मन की जो डिफिशियंसी है, उसको निकाल दो। But Kaka Sahib did not treat his lameness of body as an infirmity or inferiority. ये इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको दिल में आया था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, कुछ नहीं, मेरे से भक्ति नहीं होती है। रियल लैमनेस इज इन हिज थिंकिंग। रियल लैमनेस किधर था? इज इन हिज थिंकिंग। इंस्टेड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, debility or disability, kindly deprive me of my mental debility or mental disability. He requested Lord Sai when he met once. In chapter 51, we'll see in detail how Kaka Sahib Dikshit went to Shirdi. सन 1909 सन महिना नोव्हेंबर तारीख 2 दीक्षितांची तई पुण्य पावन साई दर्शनदार भी। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिए, और साई चरित्र के अभ्यासक है, उन्होंने लिख के रखिएगा। 2 नवंबर 1909, नवंबर की 2 तारीख सन 1909 में दीक्षित काका, ये जो पुण्य पावन जो हार्डकोर साई डिवोटी थे, वो साई दर्शन को पहली बार गए हैं। हरि सीताराम दीक्षित यानी अलियास काका साहब दीक्षित साई भगवंत के पहले दर्शन उनको कब प्राप्त हुए? 2 नवंबर 1909। और वो उस उपलक्ष्य में आज भी पारला स्थित उनका जो घर है, वहां जो मंदिर अभी बांधा गया है, और वो मंदिर में ये भक्ति का दिवस, भक्ति का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि काका साहब दीक्षित, अब हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, हर एक का अपना एक काम है, हर एक का अपना एक वजूद है, भक्ति का वजूद है। काका साहब का एक अलग है, हर एक अलग अलग रहे। आपको बाबा के पास जो है सेवा भाव से जुड़े हुए लोग हैं, भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए लोग हैं ना, जैसे नाना साहब चांदोरकर है, बाबा साहब तरखड़ है, ज्योतिन्द्र तरखड़ है, सहस्त्र बुद्धे है। ये किसमें रुचि रखते हैं? सेवा भाव में रुचि रखते हैं। काका साहब भी सेवा करते थे, ऐसा नहीं, लेकिन सी द ब्यूटी। पुरंदरी की आप आगे देखेंगे और उनका देखेंगे तो ही वॉज ऑर्डेंट डिवोटी। आप यकीन नहीं करेंगे, काका साहब, बाबा साहब तरखड़ और परम पूजनीय ज्योतिन्द्र तरखड़, इनका रुतबा क्या था, इनका सोशल स्टेटस क्या था? बंबई के खटावजी माखन जी मिल के ये सेक्रेटरी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। जब ऑर्डिनरी कलेक्टर और ये जो तहसीलदार वगैरह को 300-400 तनख्वाह थी ना, तब काका साहब, अब बाबा साहब तरखड़ को 5,000 रुपए की तनख्वाह थी। और ज्योतिन्द्र जो टेक्सटाइल इंजीनियर थे लड़के, उनको 2,000 रुपए तनख्वाह थी। बॉम्बे में गवर्नर के पास जो डॉज गाड़ी होती थी ना, गवर्नर के पास, वो उनके बाद इनके घर में होती थी। बहुत बड़ा रुतबा था उनका, वो बैठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ रहता था। लेकिन ये बाप और बेटा जब शिरडी में जाते थे, लाइट का प्रबंध करते थे, पेट्रोमैक्स जला जला के अपने अपनी जगह पर रखते थे। इसको कहते हैं सेवा भाव। और ये जो काका साहब दीक्षित का जो विषय चल रहा है, काका साहब दीक्षित ये भक्ति भाव के अपने मानो अपने आप में एक प्रतीक थे। 2 नवंबर को वो फर्स्ट टाइम शिरडी पहुंचे।
This body, no, sorry. Sri Hari Sitaram Dikshit, alias Honorable Kaka Saheb Dikshit, was first blessed with the Lord Sai Darshan in the year 1909 on the 2nd of November. कितना time हो गया? We'll take the break of 10 minutes and I'll hand over it to admin. ये वीरेंद्र जी अपना सौभाग्य है कि ऐसी महान हस्ती यहाँ अपने पास है, तो प्लीज टेक ओवर। वीरेंद्र जी नमस्कार। वीरेंद्र जी नमस्कार। हाँ, जरा प्लीज टेक ओवर, मैं जरा चाय लेता हूँ। Anybody has any question on Tharkar family, their experience, can ask. Anybody has any questions, please unmute yourself or put it in the chat and we will read out to Virendra ji. Ram Virendra ji, I had a question. Yes. So there was an incident in your book about when your father, had that experience with Marie Ai, that terrifying experience with Marie Ai. Before that, Baba had actually asked him to sleep in the masjid itself, so that and told him not to open his eyes. So I was just curious. Every day in the masjid, Malsapati and Tatya Kote Patil also used to sleep. So during that experience that your father had, were all four of them in the masjid, or was it only Baba and your father? That is what I was saying. Yeah, so I should see the camera actually, not to the screen. Yeah. No, I actually not exactly understood what is your question. Yeah. The question is, in your book you have explained that terrifying experience your father had with that Mahi, right? Yeah. And Baba had asked him to sleep in the masjid and not open his eyes. Is that correct? No, not close your eyes or something, but Baba actually, you see, Baba has had a very typical style of functioning, and that style was such that any individual, because we are all normal people, you see. See Kaka Sahib, Dikshit and these Nana Sahib, they were all learned people, learned means learning the so-called spirituality, Indian religion, spirituality. So they were highly learned people. My father was not like that. He was just a school-going boy. So he had no knowledge about these adhyatma and all these spiritual things. So Baba used to show these people the so-called leelas in such a way that it will get impressed upon them very, very heavily. It's such a heavily that they will never ever forget in their lifetime. So on that particular day, that particular time, Baba got into, he got damn angry, and for no reason. My father had no idea why he is getting angry, what for. Because he has not done anything wrong. You see, neither he has done any sin. But he got angry and he told him that, I will, what the hell you think of yourself? I will cut you into 7 pieces and bury you in this Dwarkamai today. So
My father never understood what is this 7 pages cutting and what is this burying me and what for. I have done nothing. But that was Baba's time. So see, by that time, these people had so much of experience. See, Power Kaka, what is telling and what is talking. You see, there were some people, very few rather, and of course, not necessarily from Shirdi, but from outside Shirdi, who had realized that this fellow is no more fakir, no more Sai Baba, no, he is a different, he is not a human. You see, he is a supernatural power holding human, you see. And they had realized. So similarly, my father, he was knowing this encouragement of Baba means there is something behind this, and there is something going to take place. Otherwise, Baba will not do all this. Because you see, he had entered that time into Shirdi. Internally, he was damn scared. There is that epidemic, cholera epidemic is on, and the moment something goes wrong, what he will do? He actually used to come as a help to his mother. Basically, his function was that. So he got damn scared internally. So, he was taking it lightly. कि ठीक है बाबा है तो ठीक ठाक कर देंगे. तो अभी तो बाबा ही गुस्सा हो गए, वही चिल्लाते हैं और बोलते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे, गाड़ देंगे. तो भगवान जाने अभी क्या होने वाला है. That is so there was no question that he was asked to close your eyes and all that. तो वो बाबा का जो जो अभी यूजली आई डोंट लाइक टू कॉल इट चमत्कार. वो चमत्कार जो भी होने का वो इतना सहजता से मतलब so simply it used to happen that man used to literally fumble कि ये गुस्सा क्या होते हैं और ये क्या तो वो आदमी लेकिन डर जाने का. तो मेरे पिताजी वो डर गए, ऊपर गए और उन्होंने बाबा के पैर पकड़े कि भाई ये क्या हो गया. मैंने तो कुछ किया नहीं, आप बेकार में मुझसे गुस्सा हो रहे. बट पैर पकड़ लिया मतलब वो छू लिया उनको. You see, the moment you touch him means something will happen. You see, you are touching Parabrahma. You see, Baba has to be understood in that context by all concerned. Today it is very difficult for people like us to believe all these things, but they all had happened, and it used to happen very uh, uh, simply and plain way. You see, Kaka Sahib, because he was learned, he understood Baba very well, and he says, "वो मेरे पैर वैर का लंगड़ापन वो सब छोड़ दो, लेकिन जो मेरा असली लंगड़ापन है उसको हटाओ आप. बस वही वही सामर्थ्य है आप में, उसको आप हटा देंगे." This is what Kaka has understood Baba so well, and that is a difficult thing, you see. But some people they really understood. So incidences had taken place, particularly with my father. They were all plain and simple, but having a tremendous lasting impression till your death. You see, that is what that book I have written is exclusively because of that. That all Sai devotees should understand. The moment Sai catches you, you will not be able to get out of his clutches. You see. This is what it is. Yeah. Thank you so much. Om Yeah. Sai. Yeah, sorry. Okay, shall I start? Yes, Kaka, we can continue. Admin? Oh, thank you. Thank you, Narendra ji. Thank you, Virendra ji. Thank you. Yeah, thank you. Now we have completed
157. Yeah. So he first, Kaka Sahib Dikshit went to Shirdi first time for Sai Darshan, whose a detailed that visit narration will come in chapter 51 on 2nd November 1909. It so happened that see the वो आगे आपको आएगा कि उसको एकदम फास्टेस्ट सुपर एक्सप्रेस से भक्ति प्राप्त होती है, विहंगम मार्ग बोलते हैं। हवाई जहाज के रफ्तार से मिलेगी, किसी को स्लोली मिलेगी। काका साहब दीक्षित को विहंगम मार्ग से मिली थी। यानी क्या हुआ देखिए, मग ते पुढे त्याच वर्षी पुनश्च गेले डिसेंबर मासी, शिर्डीस श्रींच्या पुनर्दर्शनासी व्हावे रहिवासी मन झाले। आगे वही ईयर में नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ, जिस नवंबर में फंस गए, दिसंबर में फिर से एक बार गए, और दिसंबर में गए और 1 महीने के अंदर ही वो फिर से बाबा को एक लगन लग गई उनको, तो साईं भगवंत के दर्शन के लिए वो फिर से गए और उनको लगा कि यही हमें परमानेंट रहना चाहिए, ये मेरा परमानेंट, मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है और ऐसा लगता है कि यही मेरा शाश्वत स्थान है, यही मुझे रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, thereafter within a month he went to Shirdi again to avail the Lord Sai Darshan and thought of permanently settling down there. काढावे 25 शेर, बांधावे एक पत्र्याचे छप्पर, यात्रे करो सही सोयीस्कर, प्रथम विचार हा स्फुरला। क्या हुआ, उनके मन में विचार आया कि यहाँ एक छोटा सा शेल्टर हम बनाएंगे। वो शेयर मार्केट के उनका कुछ इन्वेस्टमेंट था, वो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कुछ एक 25 शेयर अपन बेच देंगे और 25 शेयर बेच के उनको उसका जो पैसा आएगा एक छोटा सा टीन शेड, एक पत्रा का शेड हम बांध देंगे और हमारे लिए रहने के लिए तो होगा ही होगा, यात्रिकों के लिए भी वो काम आएगा। ओम साई राम, आयुष्मान भव, यशवंत भव। यात्री जो पिलग्रिम्स आते हैं उनके लिए भी वो फलदायी साबित होगा, ये विचार उनके दिमाग में आया। आरंभ में उनके दिमाग में ये सोच आई कि भैया एक 25 shares. Initially Dikshit Kaka felt that from the investment of shares he could sell 25 shares and construct a shade, a tin shade with tin roof, you can say, in order to accommodate the pilgrims who are visiting the Shirdi also. उसका डेवलपमेंट कैसे होगा देखो, पुढे बाधा एक वाढ, ऐसा जाहला मनाचा धडा, पुढील वर्षीच मुहूर्त मेढा, निक्षेप दगडाशी पायाच्या। अभी देखिए ब्यूटी और स्पीड ऑफ द भक्ति, बाद में ये इनिशियल स्टेज है, उसके बाद में नहीं अपन एक स्पेसियस और एक बहुत बड़ा ऐसा बाड़ा ही बांध देते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बांध देते हैं, ऐसा उनके दिमाग में आया। और वो कंस्ट्रक्शन की नींव, उसका वो जो कॉर्नर स्टोन जो करते हैं उसका पूजन नेक्स्ट ईयर में 1910 में उसका वो पाया भरनी समारोह बोलते, कौन शिला समारंभ बोलते, एक कॉर्नर स्टोन इंस्टॉलिंग सेरेमनी वहां हो गई। Subsequently, he changed his plans and decided to raise a mansion there and scheduled to lay foundation stone on the following year, subsequent year itself. 9 December to दिन, just 11 from his first visit.
9 डिसेंबर तो दिन बाबांचे घेतले अनुमोदन, तोची मुसुमूर्तस मानून पाया वंदन सारिले. 9th डिसेंबर 1910 ये दिन में उन्होंने बाबा की आज्ञा ली, बाबा की अनुमति ले ली और दीक्षित वाड़ा, यही बाबा का कहना, यही सुमुहूर्त है, उसमें कोई ऑस्पिशियस डे और वो जो ग्रह तंत्र वगैरह सब देखने की, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है. बाबा ने कहा यही मुहूर्त है. उस नेक्स्ट डे 10th डिसेंबर उन्होंने इंस्टॉलेशन सेरेमनी कर भी ली. 10th डिसेंबर, ये 10th डिसेंबर है ना, ये 10th डिसेंबर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है साई दरबार के इतिहास में. 3 10th डिसेंबर 1910 में घटी है, लेकिन 3 घटनाएं घटी है. कौन सी हम देखते हैं. अब ये कॉर्नरस्टोन सेरेमनी को जो अगर बुलाकर भी नहीं आ पाते, ऐसे दीक्षित काका के जो बंधु है, बोलावनही येणार नव्हे ते, दीक्षितांचे बंधू ही ते थे, ते दिवशी त्याच मुहूर्ते आले होते आधीच. अभी वही दिन सौभाग्यवश देखो ये करना था, और दीक्षित काका के भैया, बड़े भैया कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर थे. हिंगन घाट में जाकर आया हूं, वहां उनकी बड़ी, वहां बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, उनमें काका साहब दीक्षित की वो जो प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ है ना, वो वहीं हिंगन घाट में हुआ है. वो स्कूल भी मैं देख कर आया हूँ. वो वर्धा के आगे है, बहुत सारा आगे हिंगन घाट. वहां से बहुत साहब दीक्षित भी आ गए थे. वो बुला के भी नहीं आ सकते, इतने व्यस्त रहते अपने शेड्यूल में, वो निमंत्रण देकर भी नहीं आ पाते थे. ऐसे भाऊ दीक्षित, भाऊ का काका साहब दीक्षित, इनके जो भाई है भाऊ साहब दीक्षित, वो भी 9 दिसंबर को एक वहां मौजूद थे, शिरडी में पहले से आके बैठे थे. Even Bhausaheb Dikshit, Kaka Saheb Dikshit's brother, who could not have graced the occasion even on being specially invited, had already arrived in Shirdi on the 10th December 1910. श्रीयुत दादा साहेब खापर्डे पूर्वीच आले होते सडे, परवानगी न मागता बाबाकडे, कोणसाकडे तयाला. Now what happened? This is 1910 December. If you refer to the apna Dada Saheb Khaparde's diary, Baba had not allowed him to go. After a long stay, he wanted to go. He had to fulfill some, materialistic word. उसके संसार के जो भी कोई obligations है या कोई duties थे, वो pending थे. लेकिन बाबा was knowing कि इनको अभी नहीं छोड़ना है. वो पहले से अकेले आए थे. ये जो ट्रिप थी उनकी अकेली है. दादा साहब खापर्डे की डायरी में आप इसका बहुत अच्छा विवरण किया हुआ है. उन्होंने 10th दिसंबर को बाबा को परमिशन मांगी घर जाने के लिए. भक्त श्रेष्ठ दादा साहब खापर्डे बाबा की आज्ञा अनुसार शिरडी यहीं रहते थे. बहुत लंबे अरसे तक बाबा ने उनको वहीं, कुछ रीजन था, आगे चल के पता चलेगा आपको. उनको घर जाने के लिए इजाजत नहीं मिल रही थी. से आसान नहीं है, आसान नहीं है. दादा साहब खापर्डे की उनकी प्रैक्टिस थी, लॉयर की प्रैक्टिस थी, मंथली 30,000 रुपीज दैट टाइम. और मैंने वो इक्वेशन बताया आपको. 30,000 रुपीज का मतलब क्या होता है? 21 रुपए का 1 तोला सोना. उस वक्त 30,000, कंपेयर विद दैट. बट गुरु की आज्ञा है, नहीं जाना है, नहीं जाना है. एंड इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन. बुद्धिमंत है, स्कॉलर है. लोकमान्य तिलक के क्या है, वो वकील है. उनको मंडाले में उनसे रिहा होने के लिए वहां इंग्लैंड तक उन्होंने जाके वो रानी को मिलके अपनी उनकी हिमायत की है उनकी, कि इनको छोड़ना चाहिए.
बहुत क्रीम ऑफ द सोसाइटी ये पीपल है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इधर खाने को नहीं मिलता करके वहां जाके शिरडी में जाके बैठो, ऐसे लोग नहीं है ये। लंबे अरसे तक बाबा ने इजाजत नहीं दी तो नहीं दी तो नहीं गए। ये जो ये जो बड़े हुए हैं ये साईं भक्त साहब, ये जो साई सच्चरित में उनका जो मेंशन उल्लेख आया है, ये फालतू का आया है, बिना वजह आया है। ग्रेटनेस ढूंढो पहले। काका साहब दीक्षित आए, अरे वो ऐसे बहुत सारे थे, आज अपन जाओ उधर, शाम का टिकट होता है गाड़ी का और टिकट नहीं मिला, अपना ये दर्शन नहीं मिला, हम कलश का दर्शन लेंगे और निकल जाएंगे, बाबा की आज्ञा नहीं है। होता है ना, होता है कि नहीं? वैसी ठीक उसी का बहुत लंबे अरसे तक दादा साहब खारबड़े सर को इजाजत नहीं दी भगवान ने वापस जाने की। परी 164 परी खापर्ड्या ते घरी जावया, दीक्षितांचे पाया घालावया, झाल्या या आज्ञा उभया। 10 डिसेंबर या दिनी 2 चीजें हुई। दीक्षित वाड़े का कंस्ट्रक्शन का आरंभ का वो सेरेमनी हुआ और दादा साहब खापर्डे को यही दिन 10 दिसंबर को घर को जाने को बाबा ने इजाजत दे दी आफ्टर लॉन्ग स्टे। ठीक है, Dada Saheb Khapade got permission to return home and the foundation laying ceremony of Dikshit Wada was allowed to be performed on the same day, that is on 10th December 1910. Another important aspect of this date, और देखिए ये दिन की और एक महती है, एक महत्व है। क्यों? कि इसी दिन से, ठीक इसी दिन से चावडीची जी शेजारती तीही याच दिवसापासून करती परम भक्ति प्रीति युक्त। बाबा की चावड़ी में जो शेजारती होने लगी ना, शेजारती, वो इसी दिन से शुरुआत हुई, 10th डिसेंबर 1910। आणखी या दिवसाची महती, चावडीची जी शेजारती तीही याच दिवसापासून करती परम भक्ति प्रीति युक्त। इस दिन का और एक महत्व, यानी बाबा की चावड़ी में जो आरती सिद्धारती होने की जो शुरुआत है वो इसी दिन से हुई। Another important aspect of this date is final that the evening prayer of Baba, evening नहीं कह सकते इसको, night prayer of Baba was initiated by Baba's disciples on the very day. पुढे सन 1911 रामनवमीचा मुहूर्त बरा, साधुनी ग्रह प्रवेश संस्कारा विधि पुरस्सर सारिले। आगे चल के एक ही साल लगा दीक्षित बड़ा बांधने को। एक 1911 की जो रामनवमी आई, वो रामनवमी को गृह प्रवेश विधि हुआ, इंटरिंग इनटू हाउस वो होता है, और दीक्षित वाड़ा पिलग्रिम के लिए, यात्रियों के लिए खुला कर दिया गया रामनवमी 1911। और वहां से फिर 2 बाड़े हो गए पिलग्रिम्स को जाने आके दर्शन, वहां रहने के लिए, एक दीक्षित बाड़ा और पहले साठे बाड़ा तो मौजूद था ही था। Thereafter, on the day of Raunami in the year 1911, along with the housewarming celebration, the premises were formally occupied. पुढे श्रीमंत बुट्टीचा हिमला, अलोट पैका खर्ची घातला, देह बाबाई तेथेच विसावला, पैका लागला सार्थकी। आगे चल के तीसरे बाड़े का निर्माण हुआ आफ्टर फ्यू इयर्स। बापू साहब बुट्टी जो बहुत धनिक श्रीमंत नागपुर से थे जी, उन्होंने बुट्टी वाड़े का निर्माण किया। बहुत पैसा लगा, अमाप पैसा लगा, अगणित पैसा लगा, और लेकिन ये पैसा खला नहीं। क्यों? कि आगे चल के बाबा का जो देह है वो चिर विश्रांति यही वास्तु में आज भी ले रहा है, और यही बाबा की समाधि बनी।
वो जो आज का जो समाधि मंदिर है वो वास्तव में बुट्टी साहब ने अपने खुद के रहने के लिए परमानेंटली वहीं सेटल होना चाहते थे, वहां वो बांध दिया गया। यानी 1916 के बाद 16 को वाड़ा क्लियर हो गया। वाडे झाले 16 को शुरुआत हो गई वाड़ा बांधने की। वाडे झाले आत 3 आता जेथे पूर्वी एकही नव्हता, आरंभी साठ्यांचे वाड्याची उपयुक्तता फारची समजता झाली. In due course, the building was richly furnished by spending large amount, which fetched appropriate returns as Baba dwelt therein. हाँ, बाबा ने वहां रखे, बाबा ने वहां अपना शाश्वत स्थान भक्तों को मिलने का चयन किया। इस वास्तु का राज वो समाधि मंदिर करके अपने पास है। Where there existed not a single shelter, now 3 mansions came into being. Initiated by Sathewada, the utility thereof many people acknowledged. Initially only Sathewada ही था, साठेवाड़ा का बहुत उपयोग हुआ इनिशियल स्टेज में। आणि कैक या वाड्याची महती, आरंभी याच स्थानावरती फुलबागांची झाड होती, निर्मिली निज हस्ती बाबा ने। अब यही स्थान पर एक महात्म्य और है। यही जो बाड़ा बांधा हुआ है, कौन सा बुट्टी वाड़ा, इस पर बाबा ने क्या किया था? बाबा ने इसके ऊपर फुलवारी, फूलों की बाग अपने हाथों से सिंचाई करके निर्माण किए थे। ये साठेवाड़ा दीक्षितवाड़ा नहीं, दीक्षितवाड़ा साठेवाड़ा नहीं, बुट्टीवाड़ा नहीं, साठेवाड़े के पास। ये साठेवाड़े का महत्व यह है कि ये बांधने के पूर्व बाबा ने यहाँ अपने खुद हाथों से पानी सिंचाकर फूलों की बाग का निर्माण किया था। Another important aspect of this mansion was that earlier there existed on the spot a nice flower garden developed by Baba himself. बागेची या अल्पकथा पुढील अध्यायी होईल वर्णिता, हेमाड साई चरणी माथा ठेवी श्रोता संवेत। ये बाग की जो कथा है ये अगले अध्याय में डिटेल में विस्तार पूर्वक कही जाएगी, बोली जाएगी, ऐसे हेमाड पंत कह रहे हैं। हेमाड साई सच्चरित, हेमाड जो है साई चरण में अपना माथा टेकते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। With pious obeisance, along with other devotees on Sai's feet, Hemad will narrate a small episode interested in this garden in the next chapter. वामन तात्या घडे पुरवित, साई समर्थ पाणी शिंपित, उखर बागी बाग उठवित, पुढे ते गुप्त जाहले। वामन और तात्या, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वामन तात्या एक ही आदमी था, जात का कुमार था, ऐसा कोई आदमी उस वक्त नहीं था। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन जब उसका संशोधन किया, इवन मुग्धा दिवाड़कर ने भी अपने इसमें लिखा हुआ है कि नहीं वामन तात्या था, उन्होंने कुछ दिया है, मतलब वामन तात्या कोई नहीं था। साई सच्चरित में वामन और तात्या के बीच में एक स्वल्प विराम देने का रह गया था, एक कॉमा देने का रह गया था। वामन यानी भक्त श्रेष्ठ वामनराव गोंदकर और तात्या यानी तात्या साहेब कोते पाटिल, ये दोनों है। वो क्या करते थे, हमेशा 2 कच्चे घड़े बाबा को देते थे। बाबा का रिवाज था, कच्चे घड़े देते थे बाबा को, रोज 2, और बाबा वो कच्चे घड़े से पानी ला ला कर वो बाग को देते थे, सिंचाई करते थे वहां। और ये जो बहुत जमीन बंजर जमीन थी, वो कुछ नहीं था, उगता था वहां। ये बंजर जमीन में बाबा ने वहां फूलों की बहुत ही अच्छी अति सुंदर बाग का निर्माण किया था। फिर बाबा वहां से गुप्त हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। श्री वामनराव
Gondkar, Tatya Patil, supplied the water pots with which with the Almighty Sai watered the plant and raised a garden on the barren plot and finally disappeared from there. पुढे औरंगाबादे पाशी चांद पाटील भेटले तयासी, यानी आगे चलकर औरंगाबाद के नजदीक चांद पाटिल की उनकी मुलाकात हुई। लगना वो जो शादी है वो शादी के वराड के साथ में वो उनके साथ बाबा फिर से शिरडी में आ गए हैं। ऐसी ऐसा साहित्य में लिखा है। कुछ दिन बाद चांद पाटिल की वो उनके औरंगाबाद के नजदीक जो धूपखेड़ा के आगे, धूपखेड़ा में नहीं मिले हैं, सिंदोन भिंदोन का जंगल है। आप एक बात बताओ, बहुत ही मनोरम स्थान है ये। आज भी बहुत सुख और शांति मिलती है। वहां का जो वाटर है ना, एक बिस्लेरी और ये जो मिनरल वाटर भी फीका है उसके सामने। 1972 में इतना ड्रॉट गिरा था बड़ा, पूरा महाराष्ट्र में एक पानी का बूंद नहीं था, सब अकाल पड़ा था। उस वक्त भी ये झरना वैसा की वैसा ही चालू था। बाबा ने जो सटका मार के वो जो पानी निकाला था ना, वो झरना आज भी वैसा ही बहता है। अब वहां के जो खेती वेती करने वाले थोड़ा सा कुआं वगैरह बना दिया है वहां। इतना मीठा पानी है, हम तीरथ लेके घर में आते हैं, एक 2-4 कैन भर के लाते हैं, जिसको पिलाओ, अरे बड़े बड़े अमेजिंग चीजें ये पानी। वो नीम का वृक्ष है ना, आज भी उसको 2-3 टन फल निकलते हैं। कभी साल में कभी जाना हुआ, हम 2-3 फल लेके आते हैं। मोरे करके है वहाँ, उनकी वो जमीन है। आज वो थोड़ा तीर्थ क्षेत्र धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। बड़ा सुकून और शांति मिलती है जहाँ चांद पाटिल मिले ना। औरंगाबाद से धूपखेड़ा जाने के वक्त, धूपखेड़ा के पहले ये बहुत जंगल का रास्ता है, भेड़िए वगैरह सब वहां घूमते रहते हैं। मुझे भी एक मिला था, हाँ मुझे भी मिला मिला था, एक तरस मिला था, हाइना हाइना मिला था मुझे एक बार। तो वो जो पगडंडी है, शॉर्टकट गोइंग फ्रॉम औरंगाबाद से गारखेड़ा होके वो जो साई टिकड़ी चढ़ के वो जो रोड धूपखेड़ा को जाता है, वो आज भी उनके वो पुराने निशान है वहां। एक बार जरूर जाकर आइएगा। यहाँ आप मुझे बोलिएगा, शांति सब जगह अगर यहाँ आते हैं तो हम यहाँ से पुणे से, या तो आप शिरडी आइए, मैं शिरडी से आपको ज्वाइन करूंगा और आपको इस स्थान पर लेके जाऊंगा जहाँ चांद पाटिल की घोड़ी गुम हो गई थी। बाबा जो नीम अपना आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ बाजू में कानिपनाथ की दरगाह है। आपको ये आश्चर्य होगा, जहाँ जैसे बाबा की शिला है ना शिरडी में, ठीक वैसी ही शिला वहां है जहां बाबा विराजमान रहते थे। बाबा का पीछे का तकिया है ना, वो भी पत्थर का है। अपने भावार्थ साई सच्चरित में कुछ लोगों को हिंदी का अभी जो मिला होगा ना, इसमें उसमें उसकी तस्वीरें दी है। और वहां मुझे दिव्य दर्शन हुआ है, एक स्वैन के रूप में वहां बैठा था। जंगली लगता है कुत्ता वो, लेकिन मैं 6 इंच के करीब जाके उनका दर्शन लिया, मुझे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट टाइम जब भी आता था वो भाग के आता था। इसकी एक पिक्यूलियर ख्याति थी, मुझे मोरे साहब ने जो नैरेट की वहाँ के जो है, ये कुत्ता दिन भर वही रहता है, वही बैठता है, मर गया अभी वो गया, बैठता था। और वो सिंदोन बिंदोन के गांव में सिर्फ 5 जगह दिन में खड़ा रहता था, 5 जगह। और 5 जगह अगर उसको कुछ खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे वहां आके बैठ जाता था। वो उसकी जो तस्वीरें है, वो तस्वीर भी मैंने खुद होके निकाली है और वो फोटो उसमें है, आप देख लेना। पुढे देवीदासाची भेट, पडती पडली जानकी दासाची गाठ, गंगा गिरांची दृष्टादृष्ट, मिळाले त्रिकुट शिर्डीत। आगे क्या हुआ, बाबा का वहां वास्तव्य हो गया और देवीदास की भी भेंट हो गई। ये थोड़ा सा इसको मैं परमानेंट तो कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, आगे चल के देवीदास बाबा जानकी दास बाबा जो पहले से ही बाबा के पहले ही 10-12 साल पहले आके वहां बैठे थे, बसे हुए थे, उनकी भेंट हो गई। गंगागिर बाबा जो सराला बेट में उनका जो है, वो गंगागिर बाबा की उनकी कैसी मुलाकात हुई।
ये जो कैसे ये त्रिकुट यानी 3 जन और बाबा कैसे साथ में मिले, इसका विवरण, इसका जो वर्णन है वो आपको अगले अध्याय में मिलेगा। मोही दिना सवे कुश्ती, इंग्लिश वर्जन पढ़ने का रह गया। He was joined by Sri Devidas and Sri Janki Das, who also had come to Shirdi, and three interacted well there. मोहित दिना सवे कुस्ती, तेथुनी मग मशिदी जाती वस्ती, जडली डेंगळ्या लागी प्रीती, भक्त भोवती मिळाले। नेक्स्ट अध्याय में जो आने वाला है, ओके, अनस्टेबल बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन। मोहित दिना सवे कुस्ती, तेथुन मग मशीदी वस्ती, जड़ डेंगड़िया लागी प्रीति, भक्त बहुत ही मिलाले। उसके आगे फिर मोहिद्दीन तांबोली के साथ उनके जो लड़ाई हुई, कुश्ती हुई, वो मस्जिद में उनका जो हमेशा के लिए जो वास्तव्य करना बाबा ने चालू किया। निमगांव के जो डेंगड़े साहब थे, बाबा साहब डेंगड़े, और उनके भाई, उनके भाव, भक्ति भाव के संबंध कैसे जुड़ गए बाबा से, और अन्य भक्त जैसे भक्तों का समुदाय कैसे बाबा के पास जमा होने लगा, इसकी कथाएं विस्तृत से अगले अध्याय में कही जाएगी। He had a wrestling about with Mohiddin, from where he retired to Majid Mai with plenty of followers in the area. Lord Sai developed a special attachment towards the Shirdi. या सर्व कथा वार्तांचे कथन होईल पुढील अध्यायी श्रवण। आता हे मान श्री साईशी शरण, घालील डोटांगन अनन्या। ये कथा और कई अन्य कथाएं अगले अध्याय में आपको बयां की जाएगी। अभी आप हिमाड़ साई बाबा को शरण हिमाड़ बाबा को शरण जा रहे हैं और उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके उनको लोटांगन यानी कंप्लीट पैरेलल टू द फ्लोर नमस्कार करते हैं। All these episodes are to be described in the following chapter. I conclude this chapter by lying prostrate before Sai and surrendering. स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, साई समर्थ सच्चरिते, साई समर्थावतरण नामम। चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। संत और सज्जन, आप जैसे श्रोतागण सज्जन की प्रेरणा से और संतों ने दी हुई प्रेरणा से शब्द रूप में जो साकार हुआ ये ग्रंथ, ये जो भक्त हिमाड़ पंत के हाथों से लिखाया गया, लिखा नहीं उन्होंने, लिखवाया गया, ऐसे इस साई समर्थ के सच्चरित का साई समर्थ अवतरण नामम, साई समर्थ का शिरडी में अवतरण कैसे हुआ, यानी उनका आना कैसे हुआ, इस नाम का ये चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। श्री सद्गुरुनाथ को, ये साईनाथ को ये अध्याय अर्पण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। स्वस्थ श्री संत साज्जन प्रेरिते, ये भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, साई समर्थ सच्चरिते, साई समर्थावतरण नामम। चतुर्थोध्याय संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। नाउ इसमें थोड़ा विवेचन है, थोड़ा डिस्कशन की बात है। ये सिर्फ हमको साई सच्चरित समझना है, उसके साथ में उनके साथ जो पैरेलल, उनका जो पैरेलल चीज है, लिटरेचर है, उसका भी अभ्यास करना है। हमको डिटेल में साई बाबा को समझ लेना है। इसमें वो भी 172 जो है, पुढे औरंगाबादे पासी चांद पाडील भेटले तयासी, लग्नाची वराळासी आले शिरडी मागोते। वो शादी की बारात के साथ आए, ऐसी मान्यता, ऐसी वदंता है। उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ संशोधन भक्त श्रेष्ठ पांडुरंग बाबाजी कवड़े
पांडुरंग बालाजी कवड़े, इन्होंने 1955 में साईं बाबा का एक क्या बोलते हैं चरित्र ग्रंथ लिखा हुआ है, श्री साई चे सच्चरित करके चरित्र। उन्होंने बहुत सारी लोगों को मिले, उनसे स्टेटमेंट लिया। 1955 में बहुत सारे लोग भी थे। अब उन्हीं के शब्दों में मैं नीचे पढ़ रहा हूं। अभी देखिए, मैं ये मराठी में है, मैं हिंदी में उसको आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी कंक्लूजन। व्हाट यू डू इज you make yourself assessment of it, take it with you, because it will create a lot of which we don't want to go. बाबा की प्रेरणा के अनुसार मैं यानी लेखक बाबा कवड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और उसकी सत्यता की सच्चाई आपको समझ में आए, और उसके बारे में और भी कुछ संशोधन हुए इसके लिए मैं आपको आगे की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कौन कह रहे हैं? हेमंत जी नहीं, बाला साहब, पांडुरंग बाला साहब कवड़े। वजीर भी, जो अमीन भाई की लड़की जो बारात के साथ यहाँ आई थी, ऐसा कहा जाता है, वजीर भी ही बाई शिर्डी येथील असून तिचा नकाह हमीद बाई या गृहस्थावर झाला होता। वजीर भी ये बाई शिर्डी में रहती थी और उसका निकाह हमीद भाई के साथ हुआ था। हमीद भाई हा धूपखेड़े के चांद पाटिल के औरत का भतीजा था, भांजा था। शादी के बाद, निकाह के बाद हमीद भाई और वजीर भी, ये जो जोड़ा था वो शिरडी में ही आयुष्य भर यानी जिंदगी भर वहीं रहा उन्होंने। और ये वजीर भी 1954 में गुजर गई और मरते समय उसकी उम्र थी 70-72 साल की। अब ये जो हकीकत है, इसका ऑथेंटिकेशन उस वक्त के संस्थान के स्थानिक जो ट्रस्टी है बाजीराव तात्याजी कोते पाटिल के चिरंजीव, उनके लड़के, उन्होंने दादाजी रामचंद्र दादाजी कोते पाटिल, वामनराव मानकोजी कोते पाटिल, बापासी लक्ष्मण रत्न पारखी, बापाजी लक्ष्मण कुलकर्णी जो रत्न पारखी थे कुलकर्णी, इनको मैं मिला हूं। इनके हाथ से मुझे वो क्या बोलते हैं, वो जो स्वीट नट्स होते हैं ना, पीनट्स, वो मुझे मिले हैं इनसे। बालाजी पिलाजी गुरव जो शहनाई वादक थे बाबा के दरबार के, निवृत्ति हनुमंत गोंदकर, सॉरी बापाजी लक्ष्मण नहीं, निवृत्ति हनुमंत गोंदकर मुझे मिले थे। और मार्तंड म्हाळसापती सोनार, सगुन मेरुजी नाईक, दत्तात्रेय दामोदर रासने, वो जो नाना साहब रासने थे। और ये जो ट्रस्टी है ये, और राजाराम रामजी पाटिल, ये लोगों की उन्होंने मुलाकात ली कवड़े साहब ने, और इन्होंने इस बात की सत्यता का समर्थन किया है। यस, और इन्होंने लिख कर लिया है, स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट लिख के लिया ये लोगों से, कि इन्होंने, कवड़े साहब ने, इन सब लोग जिनका जिक्र मैंने अभी किया था, और वो कहते कि सही बात है, जो लड़की के शादी के साथ जो हमीद और वो जो लड़की की बारात यहाँ आई थी, उसके वो जो लड़की है वो यही रहती थी। और गांव के जो इधर लोग जो है, अब 1955 लिया तो बहुत सारे बूढ़े लोग थे। अब इसमें मजे की बात यह है, धूपखेड़ा के गांव के जो चांद पटेल है, उनकी लड़की गजरा बीबी, वो भी शिरडी में रहती थी। और पांडुरंग बालाजी कवड़े वो गजरा बीबी को मिले हैं, हाँ, मुलाकात ली है वहां। और उसने भी, वो गजरा बीबी ने, ये जो लोगों ने कहा है उसको समर्थन किया है। यस, ऐसा ही हुआ है, बराबर है। और ये वजीर भी वही थी। अब शिरडी के जो बहुत वयोवृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बोलते हैं कि साईं बाबा 1866 में, 66 या 66 के बाद शिरडी में आना असंभव है, 1958 में नहीं आए हैं, क्योंकि वहां सेंसस रहा करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 10 साल में सेंसस बनाता था, और वो जो सेंसस बनाता था उसमें यही साल योग्य है, क्योंकि 1966 में बाबा का जिक्र है, 1961 में नहीं है, 1951 में भी नहीं है।
अब ऐसे बोलते हैं। अब ये जो कवड़े साहब का जो विधान है उसका गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। जो शादी का जिक्र चरित्रकार जो कर रहा है, साई सच्चरित में आया है, वो शादी के वक्त उसकी उम्र कितनी होगी? 1954 में ये जो वजीर भी है उम्र के 70-72 साल में की उम्र में वो गुजर गई है। तो उसका जन्म ही 1884 का होता है। 1954 में गुजर गई है। सब लोग उसकी गवाह दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हाँ 70-72 साल की थी बुढ़ी वो भी गए साल। 1955 की बात है ये, कवड़े साहब इनकी मुलाकात की 1954 में वो गई है, हाँ गए साल ही गुजरी है। चांद पाटिल की लड़की ने भी दी गवाह है। बाकी के लोग तो बहुत सीनियर लोग है भाई, इन्होंने भी गवाह दी है। अगर वो मृत्यु हुई है तो उसका जन्म ही होता है, तो 1866 में उसकी शादी कहां से हुई? और वो शादी के बारात में बाबा कहां से आए? मुझे इस पुरावे से ऐसा लगता है कि बाबा काल के कौन से भी मापन के, मैंने काल के मेजरमेंट में कहीं भी बैठते नहीं है। आए होंगे शादी, लेकिन ये शादी के साथ नहीं होंगे, किसी और दूसरी शादी होगी। वो इतिहास के जो ऑथेंटिकेट पुरावे लगते हैं, प्रूफ लगते हैं इतिहास को, होली ग्रंथ को नहीं, तो इसमें ये नहीं बैठता है। बाबा अनादि अनंत है, कालातीत है। वो ऊपर की जो घटनाएं मैंने अभी बोली, वो उपलब्ध जो साहित्य है उसे मेरी बिल्कुल सच यानी खातरी हो गई है, बिल्कुल भरोसा हो गया है कि बाबा ने जन्म नहीं लिया, वो अनादि अनंत है। साई महिम्न स्तोत्र में जो लिखा गया है ना, वही सच्चा इतिहास है। कौन? अजन्माद्यम एकम परब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राममेवावतीर्णम। उपासनी महाराज ने जो लिखा कि स्वयं संभवम, मैं खुद प्रकट हुए, राम के अवतार है और वो स्वयं आया है, किसी शादी के पास नहीं आए, किसी के ये नहीं आए हैं। ये उनका ये साईं बाबा का मृत्यु भी नहीं है, और ये तो है देह त्याग। इसलिए मैं बाबा को कभी भी वो गुजर गए बोलता नहीं हूं, मैं तो बाबा ने देह त्याग किया बोलता हूं। 11,000 साल राज्य करने के बाद रामचंद्र प्रभु ने अपना खुद देह त्याग किया था। अवतार कार्य के समाप्ति को श्री कृष्ण प्रभु ने खुद अपना देह त्याग किया था। बाबा ने भी अपना लगा कि अभी हमें देह का त्याग करना चाहिए, उन्होंने अपना देह त्याग किया है। कि ये बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है, जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावेन भक्तांसाठी। मैं शरीर टाकून गेलो, यानी मराठी में उसका कहते हैं मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं, मैं शरीर यहां रखा हूं, वो थक गया है, मैं उसको त्याग कर रहा हूं शरीर का। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं मर गया और मैं यहां से निकल गया हूं, मैं यही हूं। मैं भक्तों के, उन्होंने सच्चे भाव से मुझे पुकारेंगे, उनकी मुझे जरूरत, उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा। ये वचन में देखिए शब्दों का ऐसा ही इस उपयोग नहीं किया गया है। ये देह मैंने त्याग किया है, मैंने छोड़ा है उसको। अवतार कार्य की मेरी समाप्ति होने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया है। वो मैं जब अभी छोड़ दिया हूं, कभी भी धारण कर सकता हूं। उसकी अनुभूति अभी भी साईं भक्तों को आती है। सदेह बाबा कहीं भी प्रकट होते हैं। जो मैंने छोड़ा हूं मैंने स्वीकार भी कर सकता हूं, मैं कभी भी उसको स्वीकार करके फिर से भक्तों को अनुभूति देता हूं। और आज भी वो अनुभूति आती है कि नहीं? ये जो शंका आई, इसीलिए मैंने आपको ये विश्लेषण बताया। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। आज तो 10 मिनट है
और कुछ शंका समाधान लोगों के कुछ अभी वो मैसेज आ रहे थे, उसका हम करेंगे, समाधान करेंगे। और अगर एडमिन कहते हैं तो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि आगे थोड़ा सा गोशवारा लेते। क्या देखा हमने ये साई सच्चरित के 4th अध्याय में? विठोबा का दर्शन, भगवंत क्षीरसागर की अनुभूति, काका साहब दीक्षित की अनुभूति, 3 बाड़े की निर्मिति कैसी हुई, बाबा का प्रकटीकरण कैसा हुआ, पहले बाबा कैसे आए, बाबा का नीम के वृक्ष के नीचे उनका अवतरण कैसे हुआ, वो गुफा जो है तपस्या मेडिटेशन की जगह है उसको निकाला गया और उसका पुष्टिकरण कैसे किया गया, उसकी कथा आ गई, है ना। बाबा यही भगवान पांडुरंग के अवतार है, गौली बाबा ने बताया, इसका भी समर्थन आ गया। और उसके बाद लिंडी बाग अपना क्या बोलते हैं, फूल बाग, जो फूलों की बाग है, बाबा ने कैसी अपने खुद हाथों से सिंचाई, बाबा कैसे गए, और अभी अगले अध्याय में क्या क्या होने वाला है उसकी कुछ कथाएं, ये हमने अब तक बाबा की कथाएं 4थे अध्याय में हमने समझ ली है। अब उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण भी आया है कि बाबा अभी मेरा और वीरेंद्र जी साथ में सुन रहे हैं, उनका हमेशा मेरी बहस होती है, अब साई सच्चरित्र के बारे में टीका मत करो, साई सच्चरित्र के ऊपर उल्टा सुल्टा नहीं बोला, ये ब्रह्म वाक्य है, यही सच है। मान्य है गुरुदेव, लेकिन बात ये है भक्ति भाव का ग्रंथ, और इतिहास के पढ़ने को क्या लगता है, प्रूफ लगते हैं, सच्चाई लगती है। 100 साल का इतिहास है, जब सब पुरावे और सबूत सामने आते हैं तो जरा थोड़ा सा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है। इसके लिए एक इतिहासकार, एक अभ्यासक के नाते मैं कुछ टिप्पणी करूं तो मुझे माफ करना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं साई सचिन का टीकाकार हूं। वीरेंद्र जी माफ करना मुझे आप सुन रहे, मुझे अच्छा लगा है, और ये आपका ब्लेसिंग हमेशा मुझ पर चाहिए। मुझे जरूर डांटिएगा, जरूर बोलिएगा अगर कुछ गलत करता हूं तो, आपका अधिकार है वो, लेकिन मेरी भूमिका समझ लीजिए। प्यार के हमारे झगड़े होते रहते ओम साई राम। कुछ क्वेश्चन मेरे लिए, वीरेंद्र जी के लिए है तो आप पवार काका, पूछ लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी वीरेंद्र जी, ओम साई राम। हाँ हाँ, ओम साई राम। हाँ बोलो पवार सर। काका, 2 चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक पहली चीज मैं भूल गया आपको कहने के लिए, टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर न्यू बैकग्राउंड। अभी आप ओ थैंक यू बाबा की सुंदर बाग में बैठने शुरू कर दिए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 पॉइंट। और दूसरी बात मैं थैंक यू कहना सर। चाहूंगा, ये आपका साई सच्चरित्र का जो पठन एंड एक्सप्लेनेशन है, तो मेरे को वो मेरे माँ की याद आ गई, और वो मैं आपको एक सुझाव बताना चाहूंगा कि हमेशा वो पोथी पढ़ती थी, और प्लीज बताइए, बताइए प्लीज। जब अध्याय खत्म होता था तो वहां पर एक घंटी रखी हुई होती थी, तो वो सिल्वर की घंटी से ओ वो बजाने की कि अध्याय खत्म हो गए। तो मेरा एक सजेशन है आपको आपकी कि आज्ञा, आप प्लीज मैं वो वो बजा दूंगा ओके ओके, आज मैं क्लैपिंग करता हूँ, आते टाइम में मैं वो घंटी लेके आऊंगा सर थैंक यू, थैंक यू। एनीबडी एल्स, एडमिन? Sairam Kaka, there is one हेलो। question from Sairam. Can you hear me? Yeah, so आई कैन हियर यू। okay, there is a question from Shetal Gandhi. She's asking, Yeah. Kaka, can you please explain how to pray at Gurusthan? आप अपने गुरु को कैसे प्रे करते हो बेटा? आप अपने गुरु को क्या, कैसे, कौन से भाव से जाते हो? और ये तो हमारे परम गुरु है, हमारे गुरु, हमारे भगवान की गुरु है। बाबा को हम गुरुदेव मानते हैं, बाबा को हम भगवान मानते हैं, बाबा को फकीर तो मानते ही नहीं है। तो
बाबा के गुरु को हम कैसे ट्रीट करेंगे? परम गुरु है वो, वहां जाना है। हो परम गुरुदेव, हमारा नमस्कार स्वीकार करो और आपके शिष्य को आज्ञा दो, हम पर कृपा करें। बाबा अपने गुरु का टाल तो नहीं सकते ना, तो उनको बोलना है गुरुदेव हमारा परम गुरु यानी गुरु के गुरु, परम गुरु को नमस्कार करके बोलना है कि हम पर आपकी दया कृपा और शांति ऐसे ही हम पर बरसाते रहिए और बाबा हम पर प्रसन्न हो, इसके लिए उनको आज्ञा करे प्रभु। ये अधिकारवाणी से कही है। हाँ, बाबा हमारे हैं, बोलते हैं। अधिकारवाणी ऐसी चाहिए, भक्ति में ऐसी ताकत चाहिए। मैं महज एक वीरेंद्र सुन रहे करके नहीं बोल रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट भक्त इस सब इसमें होंगे। अपने की हालांकि अपनी स्पेशलिटी पिकुलरिटी, मुझे वीरेंद्र जी की भक्ति बहुत लगती है। हठ योग भक्ति बोलते हैं उसको। बाबा को डंके की चोट पर कहते थे, हमें मत सिखाना आप कौन है, आप भगवान विष्णु हो। फकीर बोलते हैं अपने आप को, बोलो आपको कहना है तो आप अपने आप को कुछ भी बोलो, हम तो आप लॉर्ड साक्षात विष्णु के अवतार हो। बोलो बाबा को, गुरु जी को बोलो, परम गुरु जी को नमस्कार करो, भक्ति भाव में ताकत लाओ और बोलो बाबा को, बोलो हम पर कृपा बरसाए। बरसाएंगे, बाबा बरसाएंगे। और बाबा अभी आगे चल के आपने देखना, बाबा 11वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, बाबा भक्तों के भक्ति के अधीन है। कुछ नहीं, हदबल हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। आप पर प्रसन्न होने के सिवाय उनके पास चारा ही नहीं रहता है कुछ। बहुत अच्छी कथा है आगे 11वें अध्याय में, आप पढ़ लेना। और उसके पहले भक्ति का जो अध्याय है, भक्ति का अध्याय 9वां अध्याय, उस वक्त वीरेंद्र जी साथ में रहेंगे, वो 9वें अध्याय में आप देखना भक्ति के सही माने क्या है। उसी भक्ति भाव से मांगो, बाबा को जो मांगना है मिल जाएगा। ओम साई राम। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? Yeah, there is another question from Parth Arora. He says, Okay. Kaka, where is that garden at Sathewada or Bootiwada? Sathewada. Sathewada. In the place of Sathewada, that garden was there. That गुरुस्थान, और गुरुस्थान को लग के जो राइट साइड में जितनी भी जगह है गेट नंबर 4 तक के, वो वहां तो गार्डन थी वो। Anybody else? Thank you. Om Sai Ram. Namaskar, Pavar Kaka ji. Namaskar. Yes, please. Yes, I'm Mamta Namaskar. from Bangalore. I'm Mamta from Bangalore. हाँ, okay, ममता जी बोलिए। It's so nice of you, Kaka ji, that we really went mentally around Samadhi complex today. It was so fine. It's really, you made us. I am just a mouthpiece, Mamta. I am just a mouthpiece of Sai Baba. No, that's true. But some media is needed for us to go around, right? So that is what I meant. And I am so happy that you just gave the gist as per my wish. So Baba made you speak that what was the total of that chapter 4. So once again, our thanks and pranams to you, Kakaji. We are really blessed to listen to you. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Anybody else? We have got just 1 minute to go, or let us conclude the session. Virendra ji, Om Sai Ram. Anything to say? No, there is nothing much to say. It's very excellent going on. I am very pleased to hear, and I will continue as long as possible. As long as Thank you. Thank you. Admin, please take over.